Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start class 9th Science Chemistry Chapter 1 Matter in Our Surroundings. ये आपका चैप्टर का नेम है and in this chapter I will discuss the first topics that one is your introduction to matter. So let us start now. Here I will discuss about matter. So what is matter and how do we find out the matter. हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि मैटर का डिफिनेशन क्या है, मैटर हम किसको बोलेंगे, है ना. सो एज आवर चैप्टर्स नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. So first of all, let me know about our surroundings is what. So simply, students, our surroundings means the environment around us. The surrounding around us. Yeah, right. So the environment around us is said to be our surroundings. Now, as you can see. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes. जब हम अपने सराउंडिंग की ओर देखते हैं, जब हम सराउंडिंग में बस नज़र डालते हैं, सराउंडिंग्स के अराउंड, है ना, देन वी कैन फाइंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स. तो हम बहुत सारे चीज़ों को देख पाते हैं. And also we can find a large variety of things with different shapes. अब ये जो थिंग्स हैं उनका शेप्स अलग हो सकता है, उनका साइज अलग हो सकता है, उनका टेक्सचर अलग हो सकता है ना. तो मतलब हम बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं जिनका साइज अलग अलग हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकता है. कुछ स्मॉलर हो सकते हैं, कुछ बिगर हो सकते हैं, कुछ सर्कुलर हो सकते हैं, है ना, कुछ रेक्टेंगुलर एटसेट्रा, है ना. उसका टेक्सचर अलग अलग हो सकता है कुछ का. तो हम अपने अराउंड में बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स को देख सकते हैं जिनका शेप, साइज, टेक्सचर क्या होगा, अलग अलग होगा. In fact, guys, everything in this universe, everything in this universe is made up of material. Everything in this universe is made up of material. We scientists have named matter. Which scientists have named matter. स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इस यूनिवर्स में आप जो कुछ भी देखते हो, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी सी इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल. And this material in terms of scientist named as matter. So we can say that everything in this universe is made up of matter. Everything in this universe is made up of matter. आप कह सकते हो कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ जो है आपका मैटर से बना हुआ है.
मतलब मटेरियल से बना हुआ है, और इसी मटेरियल को साइंटिस्ट के द्वारा मैटर का नाम दिया गया। ठीक है, सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। नाउ गाइस, I told that everything in this universe is made up of material. So we can say that everything in this universe is made up of matter, because this material is nothing but simply in terms of scientist matter. Okay, so now, so everything means the air that we breathe, the food that we eat, stones, clouds. So everything like the air we breathe, the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals. All are the examples of matter, because all are made up of material. All are made up of matter. So air is also a matter. The food that we eat is also a matter. Stones is also a matter. Clouds is also a matter. Stars a matter. Plants and animals, all are the examples of matter. And also you can say that even a small drop of water, even a small drop of water, even a small drop of water, or a particle of sand, or a particle or a particle of sand, all are the example of matter. Everything is matter. Everything is matter. अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर। सो ऑल ऑब्जेक्ट, in fact everything in this universe is made up of material. In other words, you can say all objects in fact everything in this universe is made up of matter. And the examples are air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water, or a particle of sand. Everything is matter. So guys, you can say each and everything that we see in this universe is made up of matter. We can say आप इस यूनिवर्स में जो कुछ भी देखते हो वो सारा का सारा आपका मैटर से मिल कर के बना हुआ है। मतलब मटेरियल से बना हुआ है। फिर इसी मटेरियल को साइंटिस्ट के द्वारा मैटर का नाम दिया गया। नाउ अभी हमने कहा कि ईच एंड एवरीथिंग दैट वी सी इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, लाइक एयर वी ब्रीथ, द फूड दैट वी ईट, stones, clouds, animals, even a small drop of water. Now guys, you can see all the things that we said, like food,
air, stones, clouds, stars, plants and animals, and even a small drop of water and or a particle of sand. बालू का एक छोटा सा दाना ही क्यों ना हो, या फिर पानी का एक छोटा सा ड्रॉप ही क्यों ना हो, या फिर हवा ही क्यों ना हो, भोजन, फूड, स्टोन्स, जितने भी ये मैटर हैं, ये एवरीथिंग इज मैटर। और इन सभी में एक एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि सभी का कुछ न कुछ मास होगा। हवा का भी कुछ मास होगा, फूड जो हम खा रहे हैं उसका भी कुछ मास होगा, वजन होगा, स्टोन्स स्टोन्स का भी कुछ वजन होगा ही, क्लाउड्स का, स्टार्स का, प्लांट्स का भी कुछ वजन होगा, एनिमल का भी, सबका कुछ न कुछ मास है। और सभी के सभी जितने भी वस्तु हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, सभी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। सपोज कीजिए कि अगर एयर ट्यूब में एयर फिल है तो वो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मान लीजिए कि अगर स्कूल बैग में बुक रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो बैग में कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, और साथ ही साथ उसका कुछ अपना वेट भी होगा, वजन भी होगा। आप स्कूल बैग कैरी करते होंगे तो आप तो इस बात को जानते होंगे कि वो कितना वेटेड है, कितना वो। ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि वो जो बुक के रूप में जो ऑब्जेक्ट है डैट विल हैव मास एज वेल एज वॉल्यूम बिकॉज इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। सो गाइज, everything will have certain mass and will occupy some space, means it will have some volume. So matters have both mass and volume because everything will occupy some space and everything will have certain mass. So guys, we can say that matters have both mass and volume. So matters have both. Here we can write, here guys we can write matters have both mass and volume. Matters have both matters have both mass एंड वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई आपके पास कोई मान लीजिए कोई खिलौना ही है, कोई खिलौना ही है, कोई ट्रक है ना, तो ये ऑब्वियसली गैस कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। बैलून में एयर फिल है तो ये क्या करेगा, या ये भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और इसमें कुछ मास भी होगा, और ये मास प्लस से इसमें कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मैटर कहलाएगा। सो वी कैन से दैट matters have both mass and volume. Matters can be seen, tasted, smelled or felt. Also if matters को हम क्या कर सकते हैं गाइस, matters को हम लोग देख सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं और फेल्ट महसूस भी कर सकते हैं। चूँकि उसको टच कर सकते हैं तो महसूस कर ही सकते हैं ना। जैसे matter can be seen, tasted, smelled और फेल्ट। मैटर को आप देख सकते हो, मैटर को आप टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो। जैसे मैटर के रूप में कोई खाने का चीज़ है तो आप उसको देख सकते भी हो, टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि समोसा ही एकदम गरम समोसा हो तो उसको आप देख भी पा रहे हो, टेस्ट भी कर सकते हो, स्मेल भी कर सकते हो, है ना, स्मेल और उसको महसूस भी कर सकते हो। हर चीज़ है ना, कोई गुलाब है, कोई
जैसे रोज़ फ्लावर है तो उसका स्मेल भी कर सकते हैं हम लोग। कोई टेस्टी स्पाइसी फूड है, एक पहली बात तो सबका सारा का सारा मैटर है ना, एवरीथिंग इज मैटर। और हम उनको ये टेस्ट कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, उसका स्मेल कर सकते हैं कैसा है, टेस्टी है, स्पाइसी है, ये सारा कुछ हम मैटर के साथ कर सकते हैं। एक चीज़ और है गाइस जो मैटर के बारे में जानना ज़रूरी है कि आपने ये जिस तरह से मास को हम लोग ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, वैसे मैटर को भी क्या है, मैटर मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मैटर मैटर नीदर कैन नीदर बी क्रिएटेड matter can neither be created nor destroyed। मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन इट कैन ओनली बी changed from one form to another। तो मैटर को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं गाइज और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ना इतना कुछ होने के बाद आपने ये देखा कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर हैव मास as well as volume because it occupies some space, so matter it will have mass as well as volume, matter will have mass as well as volume। So now the question is what is matter। तो इसका भी आंसर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि ये मैटर है क्या। तो मैटर का डिफिनेशन हम लोग इस तरह से दे सकते हैं गाइस, मैटर इज एनीथिंग दैट हैड मास एंड वॉल्यूम। सो वी कैन डिफाइन मैटर इन दिस वे, मैटर इज एनीथिंग matter is anything that has mass and volume। matter is anything that has mass and volume। बस सिंपल डिफिनेशन है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। और इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो डिफाइन द मैटर इन दिस वे, एनीथिंग अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज समझो आप, है ना। मेन चीज़ है दिमाग में सेट करना। नोट्स में बहुत कुछ रहेगा, कोई काम का नहीं है। काम का आपके लिए तब होगा बेनिफिशियल जब उसको आप दिमाग में सेट करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम में आएगा जो आप जानोगे। सो जस्ट recall all the things in your mind। so anything
डाइट, फिर भी आप चाहो तो अपना सेफ्टी के लिए अब या फिर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स तो ज़रूरी है ही। एनीथिंग that has mass occupies a space and can be filled by our one or more sense organs is called matter. You see guys, anything that has mass occupies a space and can be felt by our one or more sense organs is called matter. मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जो जगह को घेरे है ना, और जिसको हम अपने सेंस एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से फील कर सकते हैं। जैसे कोई फूड आइटम है तो उसको हम टच करके भी देख सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ है आपका। तो ये सब कुछ मैटर का डिफिनेशन है, बट सिंपल डिफिनेशन इज मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। ये हायर लेवल में जाइएगा आप तो हायर लेवल में मैटर का कुछ स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखने को मिलेगा आप, बट अप टू दैट लेवल दैट वन इज सफिशिएंट। इस लेवल तक ये डिफिनेशन चलेगा आपका, है ना। तो ये सब दो मैटर का डिफिनेशन है। अब देखिए गाइज, मास का ना, आपने यूनिट के बारे में तो सुना ही होगा, आप यूनिट के बारे में सुने होंगे। हाँ, जैसे केजी, सेकेंड, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट्स हैं जो कि, और ये सब ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट का मतलब हुआ गाइज, SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब वैलिड एट वर्ल्ड लेवल। जो पूरी दुनिया में वैलिड हो, जो पूरी दुनिया में क्या हो, वैलिड हो, जिसकी मान्यता पूरे वर्ल्ड में हो, उसको बोलते हैं ऐसा यूनिट, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ मास का ऐसा यूनिट होता है गैस केजी, जिसको हम लोग किलोग्राम बोलते हैं। वैसे ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हो जाएगा क्यूबिक मीटर, जिसको हम लोग मीटर क्यूब बोलते हैं ना। अब देखिए, वॉल्यूम को मेजर करने का जो कॉमन यूनिट है वो है कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, जिसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करेंगे। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू होता है गाइस 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड आल्सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा गाइस।
ये एल फॉर लीटर है। हम लोग लीटर को कैपिटल एल से ले रहे हैं ना, हो सकता है आपको और कुछ मिल जाए। एंड 1 ml, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि मास को हम लोग केजी में करते हैं मेजर, और जो कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम है आपका, उसको वो है लीटर, जिसमें 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये आपको पता ही है। और यहाँ से आपका जो 1 ml जो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ये सब कुछ यूनिट्स हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में गैस देखेंगे। आज हम लोगों ने देख लिया कि मैटर क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। इन अदर वर्ड्स, हम लोगों ने मैटर को डिफाइन करा कि एनीथिंग दैट हैज मास, कॉमा, occupies space and can be felt by our one or more sense organs is called matter। कुछ वैसा कोई भी चीज़, एनीथिंग, कुछ भी जिसका मास हो, जो जगह को ऑक्यूपाइज करे, और हम एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन के माध्यम से उसको महसूस कर सकें, फील कर सकें, गैज वो कहलाएगा आपका मैटर। एग्जाम्पल में जैसे द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or particle of sand, everything is matter। ये सारा का सारा आपका मैटर है। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हो। हम जल्द ही इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो आपको जल्द ही मिलेगा, इसका नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए, है ना। इसका चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके गैस, आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो अगर आपको समझ में आया होगा कुछ भी, तो आप कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर आप और सब्सक्राइब करोगे चैनल को और वो बेल बटन को प्रेस करोगे तो आप बने रहें हमारे साथ। हम लोग जहाँ तक होगा हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से डील करेंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे। तो आज सिंपल सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू मैटर, है ना, उसको हमने डील करा है। तो मैटर क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक्स गाइस।